Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with ratio and proportion, indices and logarithms. कि चैप्टर में सबसे पहला यूनिट रेशियो. We are starting from the very base. Let us first understand what is a ratio. ठीक है? Take out your institute study material. कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है? देखो. We use ratio in many ways in practical fields. For example, it is given that a certain sum of money is divided into three parts. एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उसको अपने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर. In the given ratio, say the ratio is 3:2:1. If the first part is given, say the first part is 300, then we can find out the total amount and the other two parts. Now you tell me what will be the other two parts. 200 and 100. So the other two parts is 200 and 100. And the total amount is 300 plus 200 plus 100 is equal to 600. In the case when ratio of boys and girls in a school is given and the total number of students, the number of boys in the school is given. Okay. Total number of boys is say 60 boys and the ratio of boys and girls is 6:5. Can we find out the number of girls of that school? Tell me. The ratio of boys and girls is 6:5 and the number of boys is 60. So tell me the number of girls. 50. So इसी तरीके से रेशियो प्रैक्टिकल फील्ड्स में यूज होता है. अंडरस्टूड? ठीक है ना? So what exactly is ratio? Ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of the same kind by division. जैसे मैं करूं, आप लोग भी मटेरियल में करते जाएंगे. ठीक है? Ratio is a comparison of the sizes. Sizes means previous example में number of two or more quantities, two quantities, boys and girls of the same kind. Same kind means they are students. By division, division means boys by number of boys by number of girls. You have understood? है ना? So a ratio is a comparison of the sizes. Sizes means संख्या. Hindi, संख्या. Of two or more quantities. What are the quantities? Quantities of boys and girls of the same kind. Means they should belong to the same group. Group एक जात का होना चाहिए उन लोग. Students. Okay. By division. Division means boys is to girls. Okay. ठीक है? राइट. ये आप लोग को साथ साथ मटेरियल में लिखना है तो लिखते जाएंगे. आई रेकमेंड लिख लो. ठीक है? रिवीजन के टाइम बहुत अच्छे से समझ में. If A and B, ध्यान से, if A and B are two quantities
Boys and girls are two quantities. A and B are two quantities of the same kind. Boys and girls are students in same units. Units means you are taking number of boys and number of girls. Then the fraction A by B. Then the fraction A by B is called ratio of A is to B. So ratio is A is to B. कैसे लिखते हैं अपने? It is written as A is to B. A to B, A is to B, A by B, same. So ratio of A is to B is equal to A by B because by division बोला और A is to B. A to B, A by B, A is to B. The quantities A and B are called terms. ये important. The quantities A and B are called terms. This is the ratio. A is to B. A and B are called terms. A is the first term and the first term का official name is antecedent. First term is called antecedent. इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. They want to test you whether you know the names of the first term and the second term. So the first term is called antecedent. क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जाना. मैथ शुड बी वेरी फन. ठीक है, जो भी कर रहे हैं 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कितना भी घंटा पढ़ रहे हैं क्लास में, मेक श्योर दैट यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ द क्लास. मैथ्स का क्लास मतलब इन्हीं 2 घंटे में मेरे को जो पढ़ना है पढ़ना है. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट and B is called the second term. The second term is called consequent. So antecedent and consequent. Alphabets में A पहले आता. The first term is A for antecedent. Alphabets में A के बाद B के बाद C आता है. मतलब C comes after A and B. So the second term is called consequent. Okay. For example, in the ratio 5 is to 6, 5 and 6 are the two terms of the ratio. जिसमें 5 is the first term which is called antecedent and 6 is the second term which is called consequent. Okay. Now, both the terms of a ratio can be multiplied or divided by the same non-zero number. By the same non-zero number. Why non-zero? Non-zero को डिस्कस करते हैं. पहले उससे पहले जनरल रूल को समझते हैं. यानी क्या बोल रहे हैं? रेशियो का दोनों टर्म्स को अपने, दोनों टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों टर्म्स को अपने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. करने के बाद भी रेशियो विल बी द सेम. यस और नो? ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 8:4. फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज 4. इन दोनों टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते. The first term will become 8 into 2 is 16, 4 into 2 is 8, 16 is to 8. अब बोलो, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो में कोई चेंज है? आंसर इज नो. द फर्स्ट रेशियो वाज 8:4 means 2:1. The second ratio after multiplying both the terms of the first ratio with 2, the second ratio 16:8 is also 2:1. So ratio में there is no change. Correct? Then इसी रेशियो को अगर अपने दोनों टर्म्स को
4 से डिवाइड कर देते, सो इट विल बी 2:1। क्लियर है? तो क्या समझे अपने? रेशियो को, रेशियो के दोनों टर्म्स को अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो रेशियो विल नॉट चेंज। द टर्म्स विल चेंज बट द रेशियो विल नॉट चेंज। ठीक है? नॉन जीरो वाई? नॉन जीरो मीन्स इट शुड नॉट बी जीरो, बिकॉज आप खुद सोचो, अगर आप 8 को और 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0:0 आ जाएगा, एंड 0:0 इज 0/0। 0/0, एनीथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप दोनों टर्म्स को डिवाइड बाई 0 कर देते, डिवाइड बाई 0 करने से तो दोनों टर्म्स इज इंफिनिटी इज टू इंफिनिटी, infinity is to infinity is not 1 is to 1, okay? You thought that only, na? Very bad. चलो, हुआ? Usually a ratio is expressed in lowest terms, means the simplest form, जैसे हमने किया ये। अब जैसे 12:16, इसको अपने 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, है ना? राइट? तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:4। The order of the terms in a ratio is important. Order is important. For example, 3:4 is not same as 4:3. But can I say that 3:4 is same as 9:16? Yes. Can I? 9:16 is 3:4. देखा? तो यही तो अपने को अलर्ट रहना है ना? राइट? कैसे पकड़े? Because 9:16 cannot be reduced to 3:4. क्या चीज? रिड्यूस करके अगर 3:4 आता है देन इट इज द सेम। ओके? पॉइंट 3, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। यानी जिन क्वांटिटीज को आप रेशियो में एक्सप्रेस कर रहे हैं उन दोनों का जात एक जैसा होना चाहिए, दे शुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर स्टूडेंट्स, ग्रुप इज सेम। So there is no ratio between number of students in a class and the salary of a teacher, because there is no relation. Since there is no relation, we cannot express in a ratio. ठीक है? There is no ratio between the weight of one child and the age of another child. आप मिस्टर राम के लड़के का वजन को मिस्टर श्याम के लड़के के हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड। रेशियो में अपने क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। x is to b. The quantities to be compared by division must be the same units. जैसे 150 grams and 2 kgs को रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए
दोनों का जो यूनिट है इट शुड बी द सेम। तो आपके पास टू ऑप्शंस है। टू ऑप्शंस क्या है? आप ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट कर दो, करके आप रेशियो में एक्सप्रेस करो, या फिर आप केजीज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो एंड देन रेशियो में आप एक्सप्रेस करो। तो बेस्ट क्या है? अगर अपने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, है ना? बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 100 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स ना। kgs means kilo, kilo means 1000, okay? So 1 kg is equal to 1000 grams. So आप kgs को grams में convert करो, so 2 kgs is 200 grams. So ratio is 150 is to 2000. Simplest form में reduce करके 3 is to 40 आ रहा है, okay? Ratio between 25 minutes and 45 seconds. तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो या तो आप सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो या मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। तो सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज अगर सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो डेसिमल का लोचा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड 1 minute हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 seconds. So 25 minutes has how many seconds? 1500 seconds. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्लियर है? So the ratio is 1500 seconds is to 45 seconds, 100 by 3, right? Okay. Ratio between 3 kg and 5 kg ये तो सेम ही यूनिट में है, so the ratio is 3 is to 5. To compare two ratios, दोनों रेशियोज को कंपेयर करना है। कंपैरिजन इन व्हाट सेंस? टू नो विच रेशियो इज ग्रेटर और स्मॉलर। सो दोनों रेशियोज को कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये एक रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, तो दोनों को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर रखना है, करके लाना है, सो दैट वी कैन कंपेयर। कैसे? जैसे 2 1/3 कैन बी रिटन एज 7/3, 3 1/3 कैन बी रिटन एज 10/3, 10/3. So this first ratio can be simply written as 10:3, because first term and second term दोनों by 3 है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो विल बी द सेम। प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं अपने। सो दिस कैन बी रिटन एज 7:10। इसको तो और सिंपल नहीं कर सकते ना, इसका काम हो गया। अब 3.6:4.8, 3.6 4.8 36 48, ये 12 के टेबल में दिखा था ये 12 के टेबल में। ये सोनो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3.6 को वी कैन राइट 3/10, 4.8 को वी कैन राइट 48/10, 36 एंड 48 को 12 के टेबल में देखा था, 3:4 बोल रहे हैं आप। इसको अपने 3:4 लिख सकते हैं, या सिंपल अपने क्या कर सकते हैं, दोनों को 1.2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3:4 आ गया। तो जो फर्स्ट रेशियो है वो 7/10 है, जो सेकेंड रेशियो है वो 3/4 है, after reducing both the ratios in their simplest form, but still we cannot compare them.
स्टिल वी कैन नॉट कंपेयर देम। देखो कैलकुलेटर अगर यूज करेंगे तो एमसीक्यूज के लिए हमारा आंसर मिल जाएगा, बिकॉज 7/10 इज 70%, 0.7, एंड 3/4 इज 0.75, है ना बेटा? ठीक है, तो ये वाला हायर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है। बट अब इसको रेशियोज, ये रेशियोज को कंपेयर करने के लिए इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस कैसे करें बोलो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या? डिनोमिनेटर शुड बी द सेम। एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? है ना? है ना? नाउ यू कैन कंपेयर। One student has got 28 out of 40, the other student has got 30 out of 40. So the student who has got 30 out of 40 has got greater marks. Clear है? ठीक है, तो ये कंपैरिजन है। ठीक है, इसको इग्नोर कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, राइट, आप लोग को साथ साथ लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, सी फॉर योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू नोट इट। रौनक वेज 56.7 kgs. If he reduces, ये जो इधर में लिखा हुआ है ना, इसी के लिए इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये अच्छी से समझ में आ जाएगा, राइट? पहले ही पढ़ लेंगे तो ऊपर से जाएगा, तो भेजा के अंदर में घुसाने के लिए पहले इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर लेना। सो रौनक का वेट कितना है? 56.7। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो, सुनना मेरा बात, if he reduces his weight in the ratio 7:6, पढ़कर मेरे को बताओ, reduces his weight in the ratio 7:6 मतलब क्या? 7 is representing the weight before, करेक्ट? सुनो ना, पूरा पढ़ाने दो। 7:6 का मतलब क्या है? reduces his weight in the ratio 7:6 का मतलब पहले अगर वेट 7 था तो रिडक्शन के बाद वेट हैज बिकम 6। रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6 का मतलब क्या? पहले अगर वेट 7 kgs था तो रिडक्शन के बाद इट हैज बिकम 6 kg। रिडक्शन के बाद इट हैज बिकम 6 kg, और पहले वेट कितना था? 56.7। so this 56.7 is equivalent to 7। ये पहले वाला वेट है, ये सोनो। तो अपने को क्या चाहिए? नया वाला वेट, सो इंटू 6 कर दोगे आप। आई बात समझ में? इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, यानी पहले अगर वेट 7 था तो रिडक्शन के बाद द वेट इज 6। तो बताओ, अगर पहले वेट था 56.7 तो रिडक्शन के बाद द वेट विल बी 56.7 by 7 into 2 into 6, sorry, into 6। यानी जो दो क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर रहे हो उन लोग सेम टाइम का क्वांटिटीज है। क्लियर है? सो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके दो। 56.7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, 48.6 kgs। ठीक है, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जांपल 1, सिंप्लीफाई द रेशियो। रेशियो क्या है? 1/3
is to 1/8 is to 1/6. ठीक है ना? राइट। तो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, राइट। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट एक कॉमन नंबर जो तीनों का मल्टीपल है। मतलब वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो 3, 8 और 6। 3 into 8 में कुछ कॉमन नहीं है बट, तो 3 into 8 इज 24। सो 24 जो है, 24 जो है, 24 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले 3 and 8 को पकड़ा। क्यों? बिकॉज 3 and 8 में कुछ कॉमन नहीं है। मैंने 8 and 6 को क्यों नहीं पकड़ा? बिकॉज 8 and 6 में 2 कॉमन है। 3 and 6 को क्यों नहीं पकड़ा? बिकॉज 3 and 6 में 3 कॉमन है। तो अपने कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले वो दो टर्म्स को पकड़ा जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, वो है 3 and 8। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 24, देन चेक करो क्या ये तीनों नंबर 24 से डिवाइड हो पाएगा क्या? सॉरी, मतलब 24 को इन तीनों नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो नहीं। सो 24 को हम तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 24 इज divisible by 3, also divisible by 8, also divisible by 6. So 24 is the lowest common multiple, LCM. ठीक है? So 1/3 डिनोमिनेटर को 24 करना है। तो डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी मेरा 8/24 हो जाएगा। सेकेंड क्वांटिटी 3/24, बिकॉज अपने लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम 24। सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/24, 4/24, है ना? राइट। सो देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था। सारे टर्म्स को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशियो विल बी द सेम। ओके, ठीक है। नाउ एग्जांपल 2, the ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 students। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 720 स्टूडेंट्स हैं। एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इज 3:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इज 3:5। So tell me the number of boys. Tell me the number of boys. 720 into 3/8, है ना? क्लियर है ना? 3:5 is the ratio. 3 plus 5 is 8. So number of boys is 720 into 3/8. How much is it coming to? Calculate. 270, है ना? And number of girls, 720 into 5/8. How much is it coming to? 450. ठीक है? So number of boys 270, number of girls 450. ये पहले है। If 18 new girls are admitted, after admission of 18 new girls, number of girls becomes 468. 450 plus 18 is 468. Find how many new boys may be admitted. How many new boys may be admitted so that the ratio, 1:3 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 rat
of the number of boys to the number of girls may become 2:3. तो क्या पूछ रहे, कितना बॉयज को एडमिट करें जिससे कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:3. तो सपोज अपने लेट कर लेते हैं, लेट द न्यू बॉयज दैट आर एडमिटेड इज x number of boys are new admissions. So after x number of boys are newly admitted, number of boys will become 270 plus x. 270 plus x हो गया ये आफ्टर द एडमिशन. तो अभी गर्ल्स एंड बॉयज के एडमिशन के बाद रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 270 plus x by 468, which is given as 2:3. 2:3, and this is equal to 2/3. Now we can easily find out the value of x, है ना. कैसे निकालोगे, 468 को RHS में ले जाओ. yes, 468 into 2/3 is equal to 312, है ना. इसको इधर में ले जाने से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है, कितना है 312. अब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 312 minus 270 is 42. ठीक है, right? So 42 is the number of new admissions. Next, inverse ratio. What is inverse ratio? If the ratio is a by b, इसका inverse will be b by a. Ratio is a by b, इसका inverse ratio is b by a. दोनों को multiply करो, what do you get? 1. So one ratio is the inverse of another if their product is 1. Thus a by b is the inverse of b by a, and b by a is the inverse of a by b. Now some properties of ratios. A ratio a is to b, ratio is a is to b. अगर इस रेशियो में the first term is greater than the second term, we say that the ratio is of greater inequality. So when do we say that the ratio is of a greater inequality? When the first term is more than the second term. Vice versa situation में when the second term is more, the first term is less than the second term, we say that the ratio is of lesser inequality. रेशियो का कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लीकेशन. कैसे, दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ. तो अगर इफ द रेशियो इज a is to b and the second ratio is c is to d, so दोनों का कंबाइंड रेशियो इज ac is to bd. ठीक है, compounding means simply the multiplication of the two ratios, as simple as that. Compounding means simply the multiplication of two ratios. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 and 5:7. 3/4 into 5/7 is equal to 15/28. Yes or no? So this is the compound ratio. Compound ratio of 2:3, 5:7, 4:6. बोलो, 2/3 into 5/7 into 4/9. How much is it coming to? 2 into 5 into 4 is 40. Then 3 into 7 is 21 into 9 is 189.
क्लियर है? इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग मीन्स सिंपली मल्टीप्लाइंग द टू रेशियोज. नेक्स्ट, a ratio compounded of itself. Very difficult to understand. This is a ratio compounded of itself means what? A into a by b into a by b. Compounded of itself. What is the self of the ratio? A by b. इसी के साथ अगर अपने उसको कंपाउंड कर देते यानी a by b into a by b is a square by b square. It is called as duplicate ratio. So duplicate ratio अपने को सिंपल वे में कैसे याद रखना है? Square of the first term divided by square of the second term. So a square is to b square is the duplicate ratio of a is to b. Triplicate क्या होगा? Cube. Cube of the first term is to cube of the second term. So a is to b का triplicate ratio is a cube by a cube is to b cube. For example, duplicate ratio of 2 is to 3 is 4 is to 9. है ना? And triplicate ratio of 2 is to 3 is 2 cube is to 3 cube. 2 cube is 8 and 3 cube is 27. The subduplicate means the square root of the two terms. The subduplicate means square root. So the subduplicate ratio of a is to b is square root of a is to square root of b. And the subtriplicate ratio is the cube root. Understood? The subtriplicate ratio of a is to b is the cube root. The subtriplicate ratio of a is to b is cube root of a is to cube root of b. डुप्लीकेट के टाइम स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट के टाइम स्क्वायर रूट करना है, ट्रिप्लीकेट के टाइम क्यूब करना है एंड सब ट्रिप्लीकेट के टाइम क्यूब रूट करना है. ओके. The subduplicate ratio of 4 is to 9 is square root of 4 is to square root of 9 2 is to 3. The subtriplicate ratio of 8 is to 3 8 is to 27 is cube root of 8 is to cube root of 27 which is 2 is to 3. 8 can be written as 2 to the power 3 and 27 can be written as 3 to the power 3. तो इसी का क्यूब रूट मीन्स इंटू 1/3 पावर में. क्लियर है? ओके. पॉइंट नंबर 6, continued ratio. Continued ratio in the relation is the relation or comparison between the magnitudes of 3 or more quantities of the same kind. मतलब when 3 similar quantities are put in a ratio, it is called continued ratio. So continued ratio of 200, 400 and 600 is 2 is to 4 is to 6 यानी 1 is to 2 is to 3. समझ में आया? जब 3 क्वांटिटीज को अपने रेशियो में लिख रहे हैं वी कॉल इट एज कंटिन्यूड रेशियो. 3 and more. So what is continued ratio? Ratio between 3 or more quantities of the same kind is called continued ratio. ठीक है? Example 1. The monthly incomes of 2 persons are in the ratio 4 is to 5. 2 पर्सन का मंथली इनकम रेशियो 4 is to 5 में है
and their monthly expenditures are in the ratio 7:9. ओके, ये इनका एक्सपेंडिचर है. इनकम इज इन द रेशियो 4:5. expenses are in the ratio 7:9. income minus expenses, savings. income minus expenses, savings. क्या लिखा हुआ है? if each saves, each means ये दोनों persons, if each saves ₹50 per month, find their monthly incomes. कैसे करेंगे इसको? मंथली इनकम इज इन द रेशियो 4:5. तो अपने अज्यूम कर लेते हैं, say the monthly income of the first person is 4x and the monthly income of the second person is 5x. ओके, और दोनों जन मंथली कितना सेव कर रहे हैं? 50. तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका मंथली इनकम इज 4x एंड द मंथली सेविंग इज 50. तो फर्स्ट पर्सन का मंथली एक्सपेंस कितना होगा? 4x minus 50. This is income. है ना? We know that ना income minus expense is equal to savings. So income minus savings is equal to expense. है ना? So income is 4x. Monthly income is 4x. Monthly saving is 50. So monthly expense is 4x minus 50. Monthly income is 5x. Monthly savings is 50 because each of them saves ₹50 per month. So monthly expenses 5x minus 50. Yes or no? So this is the monthly expense of the first person. This is the monthly expense of the second person. And we know the ratio of their expenses. So we know that 4x minus 50 divided by 5x minus 50 is equal to 7:9. आई बात समझ में? है ना? तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आप निकाल लोगे. है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लोगे. x का जो वैल्यू आएगा, पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड देयर मंथली इनकम एंड द मंथली इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 4x. तो x का जो वैल्यू आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पर्सन का मंथली इनकम. ठीक है? एग्जाम्पल 2, the ratio of the prices of two houses का prices का ratio was 16:23. 2 years later, when the price of the this house increased by 10% and that of the second house by 477, the ratio of the prices becomes 11:20. 2 साल बाद जब फर्स्ट हाउस का प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड द सेकेंड हाउस का प्राइस इंक्रीज बाय 477, इंक्रीज होने के बाद द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11:20. फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द टू हाउस. कैसे करना है इसको? ओरिजिनल प्राइस का रेशियो क्या है? 16:23. तो अपने हाउस 1 का प्राइस कैन बी टेकन एज 16x and house 2 का प्राइस कैन बी टेकन एज 23x. अब हाउस 1 का प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 10%. 10% ऑफ 16 इज 1.6. है ना? क्लियर है? सो आफ्टर द इंक्रीमेंट, the price of house 1 becomes
16x plus 1.6x, which is equal to 17.6x, right? And the price of house 2 increased by 477. So this is the final price of house 2. So house 1 का price is 17.6x and house 2 का price after the increase is 23x plus 477. So these are the new prices after the increase, and the ratio of the prices after the increase becomes 11:20. यानी इनका रेशियो इज 11:20. जो नया प्राइस हो गया आफ्टर द इंक्रीजेस उनका रेशियो इज 11:20. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. 17.6 into 20 is 352x. 23 into 11 is 253x, and 477 into 11 is 5247. तो 253x को LHS में लिया. 352 minus 253 is 99x is equal to 5247. So 5247 divided by 99 is 53. So x is equal to 53. So अपने को निकालना क्या है? ओरिजिनल प्राइसेस. सो ओरिजिनल प्राइसेस को हमने क्या अज्यूम किया था? H1 का ओरिजिनल प्राइस 16x, H2 का ओरिजिनल प्राइस 23x. तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए H1 के केस में 16 इंटू 53, H2 के केस में 23 इंटू 53. ओके, यू आर कंफर्टेबल सिटिंग? ओके. एग्जाम्पल 3 क्लियर है ना? एग्जाम्पल 3 हटकर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस of the workers. How do you calculate total wages? Total wages of the workers in a factory is computed as wages per worker into number of workers, है ना? Total wages is computed as wages per worker into number of workers. एक वर्कर का वेज into number of workers is total wages of the workers in a factory. So क्या लिखा है? Find in what ratio, किस रेशियो में वर्कर्स का टोटल वेजेस विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी किस रेशियो में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा इफ, अगर देयर इज अ रिडक्शन. ध्यान से सुनेंगे. देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स. देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11. मतलब क्या? There is a reduction in the number of workers in the ratio 15:11. मतलब क्या? Before the reduction, अगर number of workers 15 थे, तो after the reduction it has become 11. यानी हमेशा जो फर्स्ट टर्म है वो हिस्ट्री का बात करेगा, एंड जो सेकेंड टर्म है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का बात करेगा. ये चीज को फिक्स करके रखें. रेशियो का फर्स्ट टर्म हमेशा हिस्ट्री का बात करेगा, एंड सेकेंड टर्म प्रेजेंट या फ्यूचर का बात करेगा. रिडक्शन इज इन द रेशियो, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स हैव रिड्यूस्ड इन व्हाट रेशियो? The number of workers has reduced in the ratio 15:11. means पहले 15 वर्कर्स थे, तब 15 के जगह 11 लोग हैं.
यानी अगर पहले 30 वर्कर्स वर देयर, नाउ देयर आर हाउ मेनी, 22, है ना, नाउ देयर 22 वर्कर्स, ऐसे. So number of workers have reduced and they have reduced in the ratio 15:11. Second, there is increment in their wages. Yani monthly wages have increased over time. Number of workers have reduced and their wages per worker has increased. And we know that total wages is equal to number of workers into wage per worker. Increment in their wages is in the ratio 22:25. Interpret करके the first term हिस्ट्री का बात करेगा, सेकेंड टर्म प्रेजेंट या फ्यूचर का बात करेगा. इंक्रीमेंट इज इन द रेशियो 22:25. यानी पहले अगर 22 रुपए का वेज था तो इंक्रीमेंट के बाद 25 रुपए का वेज हो गया. यानी अगर पहले अगर 44 रुपीज का वेज था तो इंक्रीमेंट के बाद इट हैज बिकम 50 रुपीज, है ना. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. और हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस, in what ratio the total wages is increased or decreased. मतलब रेशियो, कौन सा रेशियो निकालना है? प्रीवियस टोटल वेजेस इज टू प्रेजेंट टोटल वेजेस. Understand the ratio in which the total wages be increased or decreased. I'll explain. यानी क्या रेशियो निकालना है? Previous total wages, because first term is always history and the second term is always present or future. So कौन सा रेशियो निकालना है? Previous total wages is to present total wages. तो सपोज अगर रेशियो निकलता है 6:5, व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन? पहले अगर टोटल वेजेस 6 रुपए का था तो आज के डेट में टोटल वेजेस 5 रुपया है. इट मींस द टोटल वेजेस हैज वेरी गुड, एक्सेलेंट. बट अगर रेशियो निकलता है से 11:12, क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा? पहले अगर 11 रुपए का वेज था तो एट प्रेजेंट 12 रुपीज का टोटल वेजेस है, तो देयर इज एन इंक्रीज. सो वही रेशियो अपने को निकालना है. फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो of the total wages before is to after. Okay, क्वेश्चन देखकर मेरे को बताओ. नंबर ऑफ वर्कर्स, क्वेश्चन देखकर मेरे को बताओ. नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हुए, रिडक्शन इज इन द रेशियो 15:11 and wages per month has increased in the ratio ओके. चलो अब इसको करते हैं. तो और हम लोग को रेशियो निकालना है टोटल वेजेस का. कैसे? बिफोर इज टू आफ्टर. बिफोर इज टू आफ्टर.
राइट। हो करें, सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग, अच्छा पहले नहीं, देखते हैं टोटल वेजेस कैसे निकलते हैं। टोटल वेजेस इज number of workers into wage per worker. So we are assuming XB number of workers ठीक है, and YB the wages per worker. Let X be the number of workers before the reduction in the number of workers, and Y be the wage per worker before the increment in the wages per month. So X be the number of workers original जो पहले था, and Y be the wages per worker original जो पहले था, राइट है, क्लियर है। सो अभी टोटल वेजेस टोटल वेजेस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज पर वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स इज एक्स एंड वेज पर वर्कर इज वाई, यानी एक्स इंटू वाई इज टोटल वेजेस जो पहले था, राइट। अभी क्या हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ क्या हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स has reduced in the ratio 15:11. So after this reduction, at present, the number of workers is X, bolo. X is the number of workers before the reduction in the number of workers. The number of workers has reduced in the ratio 15:11. 15 पहले था तो अभी 11 हो चुके हैं। पहले कितना था x, तो ये 15 के इक्विवेलेंट है, अभी कितना हो गया 11। So number of workers after the reduction is 11 by 15x। समझ में आया आपको, पहले 15 था अभी 11 हो गया, पहले x था तो अभी 11 by 15x हो गया, x पुराना था 15 पुराना था, पुराना को पुराना से आप डिवाइड करेगा। हम टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करते क्लास में,
जो लैंग्वेज अपने को सबको समझ में वो लैंग्वेज यूज करना। पुराना को पुराने से डिवाइड करेगा ना, लोहे लोहे को काटते हैं, पुराना पुराने से डिवाइड होगा। ओके, अभी नाउ यू टेल मी द वेजेस पर वर्कर हैज इंक्रीज्ड, the wages per worker has increased and it has increased in the ratio, it has increased in the ratio 22:25, यानी पहले अगर 22 था तो अभी 25 हो चुका है। So what is the wages per worker after the increment? बोलो, पहले कितना था? उसके बराबर वाई, पहले वाई था, पहले वाई था ना, पहले वाई था एंड उसके बाद द वेजेस पर वर्कर्स हैज इंक्रीज इन द रेशियो 22:25। मेरा सीक्वेंस को समझो, पहले वाई था, वाई, उसके बाद द वेजेस पर वर्कर हैज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 22:25, यानी 22 से 25 हो गया। आई बात समझ में? वाई पुराना है, 22 भी पुराना है, समझ में आया? तो वाई का नया वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? ऐसे, ओके। सो दिस इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एट प्रेजेंट and this is the wages per worker at present. So now what is the total wages at present? 11 by 15 into 25 by 22. 11 by 15 x into 25 by 22 y. 11 by 15 x into 22 by 25 by 22 y. कितना आ रहा है बोलो? 1 2 3 5 by 6 एक्स वाई आ रहा है, आ रहा है? परफेक्ट, लिख रहा बानी? परफेक्ट। ये टोटल वेजेस एट प्रेजेंट है, ये टोटल वेजेस एट प्रेजेंट है। एंड इससे पहले टोटल वेजेस कितना था? एक्स वाई, वेरी गुड। इससे पहले टोटल वेजेस कितना था? एक्स वाई। सो हम लोग रेशियो में हमेशा बिफोर इज टू आफ्टर करते हैं। बिफोर द टोटल वेजेस वर एक्स वाई एंड आफ्टर में टोटल वेजेस इज 5/6 एक्स वाई। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो रेशियो देखो इधर में, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5/6 एक्स वाई कैंसिल हुआ क्या? 6:5। ऊपर से जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा ना। क्लियर है ये? So this is, yes, the ratio of total wages has decreased and it has decreased in the ratio 6:5। यानी पहले अगर 6 रुपए का टोटल वेजेस था तो अभी 5 रुपए का टोटल वेजेस है। हमेशा बिफोर इज टू आफ्टर होता है ना, ठीक है? बिफोर इज टू आफ्टर ही होना चाहिए ना, पहले बिफोर है तो बिफोर ही आएगा, वो आफ्टर है तो आफ्टर आएगा। सो बिफोर इज टू आफ्टर। सो द रेशियो, the total wages has reduced in the ratio 6:5, यानी पहले अगर 6 रुपए का टोटल वेजेस था, now it has become 5 rupees का। Have you understood? Clear है? हीरे बदमाश,
क्लियर है? मजा नहीं आया बेटा? क्यों? टाइम लग गया तो। एन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज, बट मजा चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। सो क्या करें? दिस इज अ 15 is the number of workers before, and the wages per month is 22 before. So the total wages before is 15 into 22. रुक जाओ. Now you tell me 11 into 25. So the total wages before and the total wages after, है ना? 15 into 22. करो, वही तो आ रहा है ना? क्या हुआ? Why laughing? Tell me. He's telling that you have wasted my time. He wants to penalize me. Very nice. है ना? 6:5. हाँ, 6:5 आया ना? सिंपली हमने क्या किया? रेशियोज को मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग। यही तो पूरे আমরা। हम लोग को टोटल वेजेस का रेशियो चाहिए, राइट? हम लोग को कंसेप्ट को समझो, हम लोग को टोटल वेजेस का रेशियो चाहिए, एंड टोटल वेजेस का रेशियो, एंड टोटल वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज पर मंथ। तो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो को वेजेस पर मंथ का रेशियो से मल्टीप्लाई करके टोटल वेजेस का रेशियो निकाल लिया। इससे सिंपल कंसेप्ट हो सकता है। वी नीड टोटल वेजेस का रेशियो, एंड टोटल वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज पर मंथ। सो टोटल वेजेस का रेशियो निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो को वेजेस पर मंथ का रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया डायरेक्ट आंसर। सिंपली कंपाउंड कर दिया हमने दोनों रेशियोज। ठीक है? देखो इन लोग भी ऐसे किए। शिव शिव शिव। राइट। सो रेशियोज का हमने सारे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट को डिस्कस कर लिए, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बचता है? एक्सरसाइज। ठीक है? रेडी? चलो देखना कितना सिंपल है। इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, the ratio of two quantities is 3:4. If the antecedent is 15, antecedent means first term, the consequent will be, कैसे? अच्छा, 3:4 हमारा रेशियो है। इसमें अगर एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म इज 15, तो सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट विल बी, लिखते जबानी कर रहे हैं ना, मेरे को बोलना ना पड़े बेटा। हाँ ठीक है? खाली आंसर लिखा है कि ये भी लिखा है?
हो जाएगा ना। अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग लिखते जाना, जहां मेरे को लग रहा है कि हाँ लिखना है तो लिख लेना। ओके। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 7:5, है ना? 5:7 is my ratio. इसका इनवर्स है 7:5, तो इसमें consequent is 5, तो antecedent is 7. 4. The ratio compounded of 2:3, 9:4, 5:6, 8:10. कंपाउंड करो, करते जाओ साथ साथ। कंपाउंड का मतलब क्या? सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है ना? करते जाओ, खुद से भी करो, है ना? एक्सरसाइज लिखकर, क्वेश्चन 4 लिखकर अच्छे से करो। सभी तो कैंसिल हो गया। इट इज कमिंग 1:1। हौले हौले करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर कैंसिलेशन में दिक्कत है तो कैलकुलेटर यूज करके कर लेना, और क्या है ना? कैंसिलेशन किया ना, इसमें इजी हो जाता है। कैसे कैसे कैंसिल किया वो बताना है कि हो जाएगा। वो हो गया 1:1। कैन वी मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? डुप्लीकेट में क्या करते हैं? दोनों टर्म्स का स्क्वायर, सो 9:16। सब डुप्लीकेट में क्या करता है? दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट, सो 5:6। ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं? दोनों टर्म्स का क्यूब, 8:27। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं? दोनों टर्म्स का क्यूब रूट, 2:3। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9। द रेशियो कंपाउंडेड of 4:9 and the duplicate ratio of 3:4. Duplicate ratio of 3:4 is 9:16. तो अपने को कंपाउंडेड रेशियो निकालना है 4:9 एंड 9:16 का, है ना? क्या लिखा हुआ है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 on one side and the duplicate ratio of 3:4 on the other side. What is the duplicate ratio of 3:4? 9:16. So simply दोनों को multiply. 1:4। ना ना, नहीं, ए आ रहा है ना, ऑप्शन ए। 10. The ratio compounded of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, 3:4 का duplicate ratio is 9:16. The triplicate ratio of 2:3, 8:27 and 9:7, यानी 4/9 into 9/16 into 8/27 into 9/7। करेक्ट है? तो ये 9 कैंसल हो गया, 4 कैंसल, कैंसल, A1 3, है ना? क्या रहा? बोलो, रेशियो इज
2:21. Wait. Question number 11. The ratio compounded of 4:5, 9:7. The triplicate ratio of 3:4. So the triplicate ratio of 3:4 and the triplicate ratio of 2:3. रुको, इसमें अगर अपने 3:4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालते देन मल्टीप्लाई करते, देन उसको तो अपने को बाद में जाकर काटाकुटी करना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज सजेस्टेड फॉर द एग्जाम? ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:4 को आप क्या करोगे? 3 बार 3:4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका टाइम कम लगे, है ना? अग्रीड? बिकॉज आप 3 क्यूब करोगे, 4 क्यूब करोगे, टाइम लगेगा उसमें. देन इधर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्यूब काटाकुटी करने के लिए, तो फिर उसमें भी फिर आपको सिंपल करना पड़ेगा. तो सच सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लो. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप क्यूब निकालकर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, काटाकुटी करोगे. सो अच्छा, मेक इट सिंपल फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली. अब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3. सो क्या करना है? 2:3 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर. तो देखो कितना सिंपल हो गया. 3 कैंसर, 4 कैंसर, कैंसर, कैंसर. बचा क्या? ऊपर में 9 है ना खाली. 9, 5 into 7 is 35, into 2 is 70. So क्या रहा? 9:70. So answer will be, बोलो, none of these, yes or no? Okay. Question 12. A is to B is equal to 3:4. The value of 2A plus 3B is to 3A plus 4B is. कैसे निकालेंगे बोलो? करते हैं इसको. क्या क्वेश्चन में बोलो? A is to B is 3:4. A is to B is 3:4 और हम लोग को निकालना क्या है? क्वेश्चन देखकर बताओ. ये निकालना है, राइट? यस, नो? ठीक है. A is to B is equal to 3:4, यानी A by B is equal to 3/4. So can we write as A is equal to 3/4B? 3/4B, यानी हमारा जो फर्स्ट टर्म है that will be 2A के जगह we can write 3/4B. ये मेरा फर्स्ट टर्म है. A के जगह we can write 3/4B plus 3B.
तो ये रहा 3/2b प्लस 3b एंड 3/2b, ये सोनू समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? देखो, a कैन बी रिटन एज 3/4b। तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर, फर्स्ट टर्म इज 2a प्लस 3b, प्लस 3b को एज इट इज लिखा, फिर a के जगह हमने लिख दिया 3/4b। सो 2 इंटू 3/4b, 2 and 4 gets cancelled, इसमें रहा 2, so it is 3/2b plus 3b। ठीक है, सो अब इसको कॉमन ले लेते हैं। सो 3b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b, 3b प्लस 6b by 2 is equal to 9b by 2। दिस इज फर्स्ट टर्म। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अभी सेम वे में सेकेंड टर्म को करो। सेकेंड टर्म इज 3a प्लस 4b। a के जगह वी कैन राइट 3/4a प्लस 4b, सॉरी 3/4b। a के जगह वी कैन राइट 3/4b प्लस 4b, तो 9b/4 प्लस 4b। अब इसको कॉमन लेंगे, 9b, 4 इंटू 4 इज 16b/4, 9b प्लस 16b इज 25b/4, है ना? क्लियर है? ये मेरा सेकेंड टर्म है और ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म by second term, now this can be written like, है ना? ये डिवीजन में है ना, तो ऊपर में ले जाएंगे तो उसको रिवर्स करते हैं, ये रूल याद रखना। और रिवर्स मैंने किया नहीं, सो सॉरी। आप वही बोला था क्या रिवर्स क्यों नहीं किया? ओह थैंक यू। रिवर्स करना चाहिए था, बानी से रिवर्स करना चाहिए, कर दिया रिवर्स। बानी से इसके ऊपर में ले जाते तो रिवर्स करते, कर दिया रिवर्स। BB gets cancelled, ratio is 18:25। समझ में आया? So the ratio is 18:25। Next, two numbers are in the ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5। यानी दो नंबर्स 2:3 के रेशियो में है, दोनों में से अगर अपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो उनका रेशियो हो जाएगा 3:5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? से सपोज द फर्स्ट टर्म इज 2x एंड द सेकेंड टर्म इज 3x, दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, करने के बाद हो जा रहा है 3/5, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 20, 9x माइनस 12, है ना? सारे एक्सेस को एक जगह ले, x हो जाएगा 8, x इज इक्वल टू 8। So tell me the terms. First term is 2 into 8, 16. Second term is 3 into 8, 24. So the two terms are 16 and 24. ठीक है. Question 14 is very simple. The angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. So the angles are, अब इनमें से देख लो
कौन सा आंसर इज इन द रेशियो 2:7:11 के रेशियो में? सी ना, बिकॉज 11 से देखकर समझ में आ रहा है ना, 90 और 80 तो होगा नहीं, 99 होगा। बट एक बार चेक कर लेंगे बिकॉज हमारे पास नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो 99 इज डिविजिबल बाई 11, तो चेक कर लो, है ना। क्या? ऑल आर डिविजिबल बाय 9। 99 by 9 is 11, 63 by 9 is 7, 18 by 9 is 2, 18 by 9 is 2, 63 by 9 is 7, 99 by 9 is 11। बोलो। हाँ, नाइस। व्हाट रीचेक? इसमें तो सबका 180 डिग्री है। अरे तो इसमें सारे ऑप्शंस का तो 180 डिग्री आ रहा है टोटल, ठीक है ना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, द डिवीजन ऑफ ₹324 between x and y is in the ratio 11:7। 11 plus 7 is 18, so what is the share of x? 324 into 11 by 18 करके देखो। 198, 198 ना, एंड y का शेयर इज 324 into 7 by 18, 126। ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर आए? 198 एंड 126। Anand earns ₹80 in 7 hours and Pramod ₹90 in 12 hours. Find the ratio of their earnings. No, आनंद का जो अर्निंग्स है ₹80, दैट इज इन 7 hours, एंड प्रमोद का जो अर्निंग्स है ₹90, दैट इज इन 12 hours. So we cannot express the earnings in the ratio unless time is same. बिकॉज आनंद के 7 घंटे का कमाई को हम लोग प्रमोद के 12 घंटे की कमाई से कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों के अर्निंग्स को कंपेयर करना है तो 12-12 घंटा या 7-7 घंटा का अर्निंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आनंद का 12 आवर्स का अर्निंग निकालो, या फिर आप प्रमोद का 7 आवर्स का अर्निंग निकालो। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के अर्निंग्स को कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स शुड बी द सेम। यस और नो? तो इसको सिंपली कैसे करें? आनंद का अर्निंग्स इज ₹80 इन 7 आवर्स, करेक्ट। सो आनंद का अर्निंग्स इज ₹80 इन 7 आवर्स, सो व्हाट इज आनंद अर्निंग इन 12 आवर्स? यही होगा ना। आनंद अर्निंग इज ₹80 इन 7 आवर्स, तो पर आवर इज 80/7, सो 12 आवर्स में 80/7 into 12। ये आनंद का अर्निंग्स इन 12 आवर्स है, एंड व्हाट इज प्रमोद का अर्निंग्स इन 12 आवर्स? 90। सो रेशियो में डिवाइड करते हैं 90 से। मैं हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में करता हूं, ये सोनो। तुम्हारे पास अब क्या है? 80/7 into 12, बोलो, into 1/90। गेट्स कैंसर 0 0। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4
सो और कुछ हो रहा है, 32 21, ठीक है। 17, the ratio of two numbers is 7:10 and the difference is 105. Find the numbers. So this is very easy. Let the two numbers be 7x and 10x. The difference is 105. So 10x minus 7x is 105, means 3x is equal to 105. So what is x? 105 by 3 is 35. X is equal to 35. So the first number will be 7 into 35. 7 into 35 is 245. And the second number will be 10 into 35, 350. Okay. So the first number is 245, second number is 350. क्या क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, टेल मी द डाउट। अपने को 324 को डिवाइड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 11:8। पार्टनरशिप बिजनेस में द प्रॉफिट इज 324 एंड द रेशियो पीएसआर इज 11:7। सो हाउ विल यू डिवाइड? 11 plus 7 is 18. So what is x as a share? 324 into 11 by 18, and y as a share is 324 into 7 by 18. Okay, clear abhi? Question number 18. P, Q and R are three cities. ठीक है? The ratio of average temperature between P and Q. P and Q लिखते हैं, P and Q is 11:12, and that between P and R is 9:8. So find the ratio between the average temperatures of Q and R. यानी अपने को Q by R चाहिए। तो Q by R निकालने के लिए हम लोग P by Q का इनवर्स कर लेते हैं। P by Q का इनवर्स इज Q by P, 12/11। इसको अगर अपने P by R से मल्टीप्लाई करेंगे तो P कैंसिल, बचा R इज टू Q, Q इज टू R, है ना। हम लोग को P इज टू Q पता है, P इज टू R पता है, और चाहिए क्या? Q इज टू R। तो P इज टू Q का इनवर्स Q इज टू P, Q इज टू P को मल्टीप्लाई करेंगे P इज टू R से, we get Q is to R. So 12/11 into 9/8, है ना। 27/22, 27/22 ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास आने से पहले क्या करना है अपने को? अपना हर क्लास रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग्स आर शेयर्ड विद एवरीवन। तो आप ये वाला क्लास को एक बार फास्ट स्पीड में देखकर आओगे, एंड साथ में जितना भी क्वेश्चंस हमने किया है, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए, उसका रिटन प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज जब तक हाथ सेट नहीं होगा, माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो माइंड को क्लियर होना चाहिए, ये करने से ऐसा होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो माइंड को क्लैरिटी देने के लिए, अदरवाइज नॉलेज धुंधला धुंधला हो जाएगा माइंड में।
फॉग जैसा। तो माइंड में क्लैरिटी रखने के लिए रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। तो एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हुए उन सबका रिटन प्रैक्टिस करके आओगे। सो टिल क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद क्वेश्चन 19 एंड द नेक्स्ट टॉपिक प्रपोर्शन वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, समझ में आया? क्लियर है? बेटर? ओके, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।